Good morning, student. Welcome to all student in online class of RCC Public School. I am Anil Misra. Today I want to teach physics class ninth. As we know that your science has three part. First part is physics, second part is chemistry, third is biology. In physics, your first chapter is motion. Motion is very important chapters. In motion, some point are discussed in today class video. First is what is motion, how many types of motion, difference between scalar and vector quantities, what is difference between distance and displacement, and some numerical questions. What is motion? What is motions? As we know that if you observe that any body in two positions, either rest or moving positions. So you have two positions of a body. First is rest, second is motion. A body is said to be in state of rest when its positions does not change with respect to reference point. कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में मानी जाती है अगर किसी भी रेफरेंस पॉइंट से उसका कोई भी पोजीशन चेंज ना हो. एंड मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद रेफरेंस टू ए पॉइंट. अगर कोई भी बॉडी है उसकी पोजीशन कंटिन्यूस चेंज हो रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे बॉडी के स्टेट को हम बोलते हैं ये बॉडी इन मोशन. सपोज आप घर से निकल करके बाइक से मार्केट के लिए जा रहे हैं, तो यूर होम इज़ ए रेफरेंस पॉइंट एंड यू आर मूविंग इन मार्केट, देन यूर पोजीशन इज continuously change, then said to be state of motion. So then motion is, a body is said to be state of motion when its position change continuously with reference to a point. अब motion can be defined, motion can be different type or depending upon the type of path by the object going through. Motion, there are three types of motions. First is circulatory motion or circular motion, second is linear motions and third is oscillatory and vibratory motion. Circulatory motion means in circular path. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उसके मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन. और इफ़ एनी बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ देन दिस मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशंस. एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट मोशन टू एंड फ्रो पाथ विद द रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन, दैट मीन्स यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आगे पीछे ओरिजिनल पोजीशन के आगे पीछे मोशन कर रहा हो तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन. तो यूर मोशन हैव थ्री टाइप्स: सर्कुलेटरी मोशंस, लीनियर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. बट इन क्लास नाइन्थ you are only study linear motion. Linear motion means in a straight line path. Then you are study types of motions: random motions, translational motions, circular motion and oscillatory motions. Example of the motion: some example of here motions like as a car. ये car is moving a reference point. Suppose that inside of the shop is your reference point and car is moving because the position of car is continuously changed to with respect of shop. So this is the example of motion. I hope you are understanding the motions. And I am discuss about physical quantities. We know that what is the physical quantities. Physical quantities means it is a physical property of material that can be measured. Suppose that आपकी हाइट मेजर करनी है तो हाइट इज यूर फिजिकल क्वांटिटीज. सपोज मास मेजर करना है तो मास इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज. या किसी का टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज.
Physical quantities means it is a physical property of material that can be measured. It has two types. Physical quantities को दो टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज, सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज मीन्स it is a physical quantity having own magnitude but no directions. Scalar quantities means such as quantities in has only magnitude not directions. What is magnitude? Magnitude means the numerical value. Suppose your mass is 30 kg, so 30 kg is your numerical value. This 30 kg is called magnitude. कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि जिनको मेजरमेंट करने के लिए या जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की नहीं. तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को अगर हमें मेजर करना है तो हम बोल सकते हैं कि 30 किलोमीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, दिस इज़ द ओनली मैग्नीट्यूड वैल्यू बट नो नीड टू डायरेक्शंस. तो स्केलर क्वांटिटीज इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. बट वेक्टर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी that require both magnitude and directions. For example, displacement and velocity. For example, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की नीड होती है एंड वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है. सपोज दैट ये कहा जाए कि स्कूल से आपका घर 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज they have no need या no given the direction of distance. if यदि ये कहा जाए कि स्कूल से आपका घर 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है, तो 10 किलोमीटर इज योर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज ईस्ट. तो देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, तो दोज क्वांटिटीज विच हैव रिप्रेजेंट विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. Now we discuss about distance. What is distance? Distance means it is the actual length of path traveled by a body. किसी भी बॉडी के द्वारा जितनी दूरी तय करता है या जितना एक्चुअल लेंथ को तय किया जाता है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस. फॉर द एग्जांपल, इन केस यू सीन द ट्रैक, ये ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से हम मानते हैं कि कोई रनिंग करना स्टार्ट करता है. तो इफ़ सपोज ये राउंड 400 मीटर का है, तो एक राउंड लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 400 मीटर. तो डिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी. वन राउंड कवर करने में जितना डिस्टेंस ये पाथ कवर करेगा वह उसका कहलाएगा डिस्टेंस. 400 meters is called distance. And second quantity is displacement. It is the length of shortest path traveled by a body from its initial position to final positions. Displacement को आप कह सकते हैं the shortest distance between initial position and final position is called displacement. Suppose one person is moving here. They are running on the track and this point is final here. तो this initial positions means suppose ये point यहाँ से start करता है, यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करता है और ये पूरा ट्रैक रन करने के बाद में फिर यहीं पे ये पॉइंट पहुँच जाता है. तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम. तो टोटल डिस्टेंस कवरिंग 400 मीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज 0 because displacement is the shortest distance between initial position to final positions. तो distance is your scalar quantities but displacement is your vector quantities because distance has only magnitude not directions and displacement having directions. So we want to say that
वी वांट टू से दैट कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटीज एंड इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस हमेशा जो है पॉजिटिव होगा, वो आगे की तरफ कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर ही करेगा। एंड एसआई यूनिट इज मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट इज, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हैविंग डायरेक्शंस, सो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटीज and it can positive, negative and maybe zero. SI unit is also displacement. SI unit of displacement is also meter. एंड हम यहाँ से और अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंट है। सपोज ए बॉडी कवरिंग द ट्रेवल पॉइंट ए से मूव करता हुआ पॉइंट बी पे पहुंचता है। तो द एक्चुअल पाथ इज हियर ए टू बी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ए से बी तक आने में जितना पाथ वह कवर करता है यानी लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A and B. तो A is your initial position, B is your final position. Then distance between A and B is called displacement. I hope you understand what is distance and displacement. For example, कुछ एग्जाम्पल से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। एज फॉर रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर, तो रमेश ओनली 65 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट गिवन डायरेक्शन, सो दिस इज डिस्टेंस। बट रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर। इन दिस केस द टोटल पाथ 65 किलोमीटर are given and direction is also given south and west. So this is called displacement and this is called distance. And second thing is we know that ये सर्कल है और सर्कल से सपोज हम करते हैं कि कोई भी पॉइंट ए से कोई भी इस सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है। तो ए से सर्कुलर मोशन करता हुआ फिर ए पे वो पहुंच जाता है। तो इनिशियल पोजीशन इज ए एंड फिर जब पहुंचता है ए पे ही तो फाइनल पोजीशन इज ए। तो देन द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज द सेम, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जैसा कि हम बता चुके हैं कि डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, बट डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ स्केलर क्वांटिटीज। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटीज है। एंड डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज है। डिस्टेंस हमेशा जो है पॉजिटिव हो सकता है और जीरो कभी नहीं हो सकता, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। जबकि डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मीन्स ये डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेजर द डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या डिस्टेंस से कम हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फॉर ए क्वेश्चंस, ए बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन ही
he turned to his right and traveled another 4 kilometers before coming to rest. Calculate total distance travel and total displacement. In these questions, he says that a body travel 4 kilometers toward north directions. So suppose that a body is position is O and north directions, in this north direction is upward. So then 4 kilometer going on reach at point A. Here reach point A. After that द टर्न हिज राइट, और यहाँ से ये टर्न राइट की तरफ मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर ये जा करके रेस्ट पे होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए से राइट साइड पे 4 किलोमीटर दूरी पे कवर करता है. तो ए का राइट साइड से 4 किलोमीटर आप यहाँ पे जाते हैं तो किस पॉइंट पे पहुँचते हैं, बी. तो इन दिस केस पूछा जाता है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया और टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हुआ. तो टोटल डिस्टेंस ये हुआ कि ओ से, ओ इज़ द इनिशियल पोजिशंस एंड बी इज़ द फाइनल पोजीशंस. ओ से चलना स्टार्ट करता है और बी पे पहुंच जाता है. तो जब ओ से स्टार्ट करता है, ए पे पहुंचता है, फिर ए से बी चलता है, तो देन टोटल पाथ ओ ए प्लस ओ बी. तो 4 किलोमीटर इज कवरिंग हियर एंड 4 किलोमीटर हियर. तो देन टोटल पाथ इज 8 किलोमीटर. तो दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी इज 8 किलोमीटर. बट सेकेंड थिंग इज फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हियर, बार बार मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशंस आपका यहाँ पे ओ है और फाइनल पोजीशन आपका बी है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ से बी के लिए अगर हम करेंगे तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओ से बी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो देन फाइंड आउट ओ वी इज डिस्प्लेसमेंट. तो देन total displacement is OV. As we know that here this is the right triangle, this is the base and this is the length and this is the hypotenuse. So according to Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to base square plus length square, then OV square equal to OA square plus AB square, or under root OA square plus OB square, then 4 square plus 4 square, then 16 plus 16 under root 32, then go equal to 5.65 kilometer. Then distance is 8 kilometer but displacement is 5.65 kilometer. तो कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं. आज के लिए इतना ही क्लास है, और फिर अगर ये क्लास अच्छा लगता है तो फिर मैं नेक्स्ट और वीडियो इसके क्लास के भेजता हूँ जिसमें और ज़्यादा मैं पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूँगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क. एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर. व्हाट विल द डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड. And second question is a body travel in semicircular path of radius 10 meter starting its motion from point A to point B. Calculate the distance and displacement. ये दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे. एंड तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि इसमें आपने क्या पढ़ा. ये फिजिक्स का आपका पहला लेसन था मोशन. तो फर्स्ट यू डिफाइन द मोशन. व्हाट इज़ द मोशन. तो देन कैन डिफाइन द मोशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन कैन बी डिवाइड इन 3 टाइप्स: सर्कुलेटरी मोशन, लीनियर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. बट इन क्लास 9th you are study only linear motion. And second is known as physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज जिस प्रॉपर्टी के थ्रू आप किसी भी क्वांटिटीज़ को मेजर करते हो उसको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज़, सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटीज़. वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ एक ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं. एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़. सम एग्जांपल आपने दिया, जैसे डिस्टेंस आपका क्या है,
स्केलर क्वांटिटीज है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटीज है, बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्टेंस आपका क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी दूरी तय करेगा, जितनी दूरी डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, बीच का जो सबसे कम दूरी का रास्ता होता है, ट्रैक होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सम क्वेश्चंस हैविंग यूर अंडरस्टैंड एंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आई थिंक डिफरेंस आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस ये भी आपने समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये होमवर्क जो क्वेश्चन दिए हैं इसको आप करके सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप फीडबैक दीजिएगा, फिर नेक्स्ट बताते हैं। थैंक यू।